Students, our syllabus is completed, and today I'm going to revise chapter from geography, tropical and subtropical regions. So in this you have read about Amazon basin and Ganga Brahmaputra basin. First of all, so what is basin? Basin होता क्या? You should know. Basin is an area drained by a river or its tributaries. It is an area drained by river or its tributaries. For example, जैसे मैं बोलूँ Amazon basin, so it is drained by river Amazon and its tributaries. अब मैं यहाँ पे बोलूँ गंगा ब्रह्मपुत्र basin, तो नेम से क्लियर है रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, तो ये बोथ एंड ट्रिब्यूटरीज. Area drained by river and its tributaries is known as basin. You know, we live in Satluj basin. हम सतलुज बेसिन में रहते हैं. We are not living in गंगा बेसिन. हम पंजाब में हैं तो हमारा बेसिन सतलुज बेसिन है, ठीक है? Because our area is drained by river Satluj and its tributary, that is Beas. Beas is the main tributary of river Satluj. पर आपने यहाँ पे अपना नहीं करना. In this chapter, you are going to read about, आपने जो पढ़ा भी है, today I am only revising. You have read about 2 tropical and subtropical regions. तो ये है tropical region Amazon basin, subtropical region is Ganga Brahmaputra basin. तो Amazon basin, first of all तो its location. जब भी कोई टॉपिक करते हैं तो उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए. तो it lies in South America. It lies in which continent? South America. अब साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट में है? नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है? नॉर्थ पार्ट. ये देखो, टुवर्ड्स द नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका है क्या? कॉन्टिनेंट. तो अमेज़न बेसिन lies in north part of South America. South America is a continent. Now is it clear? फिर आपने कहना है it lies towards 10 degree north and 10 degrees south of equator. Equator passes through this basin. Equator passes through. This is equator. I have taken its value 0 degree. क्योंकि आपको पता है इक्वेटर की वैल्यू लैटिट्यूड द लार्जेस्ट लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर एंड इट्स वैल्यू इज टेकन एज 0 डिग्री. So I've written here 0 degree and that's why अब मैं बोलूँगी कि lies 10 degree north and 10 degrees south of the equator. Equator passes through it and 10 degree north, 10 degrees south of the equator. अब आपने यहाँ पे बताना है Atlantic Ocean जो है, River Amazon flow through this region. River Amazon flow through this region. Western part से वो start होती है from hilly areas and then move towards the eastern part and falls into Atlantic Ocean. River Amazon flow through this region. Amazon River Amazon basin से pass होती है. Start from the western part of hilly areas. आप कह सकते हो western part में से river start होके falls into Atlantic Ocean. Now is it clear? 10 degree north, 10 degree south. Atlantic Ocean जो है वो इसके east में है. Pacific towards the west. Atlantic Ocean towards the east and Pacific Ocean towards the west. So this is about the location. It lies first of all तो continent पता होना चाहिए, फिर उसका कौन से part में है? Towards the north part. River Amazon flow through this region. Amazon River. It starts from the mountainous regions of western part and falls into Atlantic Ocean. Equator passes through it. So Amazon basin lies between 10 degree north and 10 degree south of the equator. I think location clear. अब यहीं से क्वेश्चन और बन जाना है क्लाइमेट.
यहाँ का क्लाइमेट बताओ। एज यू नो इट वेरी वेल कि इक्वेटर पासिस थ्रू इट, इट मीन्स दिस बेसिन लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन में है क्योंकि 10 इक्वेटर पासिस थ्रू दिस बेसिन, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में इक्वेटर में अमेजोन बेसिन है। ये देखो इतना पार्ट। अब एज इट लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन, तो क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। जैसे आपने सहारा में पढ़ा था क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई, यहाँ पे आप कहोगे क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। हॉट एंड वेट क्लाइमेट, लिसन केयरफुली, हियर इट लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन। सो क्लाइमेट इज, कैसा क्लाइमेट है यहाँ पे? हॉट एंड वेट। अब वेट बोला मैंने तो मीन्स रेनफॉल होती होगी। तो दिस बेसिन गेट्स हैवी रेनफॉल डेली, यहाँ पे डेली हैवी रेनफॉल होती है। इट गेट्स रेनफॉल एंड इट गेट्स डेली हैवी रेनफॉल, यहाँ पे रोज ही बहुत तेज बारिश होती है। तो बोथ डेज एंड नाइट्स आर इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड मैंने बिगनिंग में बोला, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इट रेन्स डेली हियर एंड डे टेम्परेचर जो है ना दैट इज हाई विद हाई ह्यूमिडिटी। नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई रहती है। लिसन अगेन, दिस बेसिन लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन, सो क्लाइमेट इज hot and wet. This region gets heavy rainfall daily, यहाँ पे रोज बारिश होती है। And during day, दिन में जो टेम्परेचर होता है ना that is hot with high humidity. During night, no doubt temperature goes down, but humidity remains high. Humidity फिर high रहती है during night. तो means यहाँ पे डेली बारिश होती है। तो इज इट क्लियर? यहाँ का क्लाइमेट आपको क्रैम नहीं करना, आपको अंडरस्टैंडिंग से करना है कि दिस बेसिन लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन। अब इक्वेटोरियल रीजन में है तो क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। दिस रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल, हाई रेनफॉल डेली, यहाँ पे डेली हाई रेनफॉल होती है। फिर हम कहेंगे कि ड्यूरिंग डे जो टेम्परेचर है ना दैट इज हॉट, हाई and with high rate of humidity. डे में गर्मी भी है, ह्यूमिड भी है। एंड ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर जो है दैट गोज डाउन, नाइट में टेम्परेचर डाउन चला जाता है बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ह्यूमिडिटी जो है ना वो हाई रहती है ड्यूरिंग नाइट। तो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट। अब जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होएगा जहाँ पे डेली रेनफॉल होगी, वहां की वेजिटेशन कैसी होगी? इट मीन्स यहाँ पे क्या पाए जाते होंगे? रेन फॉरेस्ट। और रेन फॉरेस्ट आपको पता ही है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ की वेजिटेशन जो है दैट इज, हम सबसे पहले कहेंगे तो रेन फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। अब रेन फॉरेस्ट है मीन्स डेंस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड। इतने डेंस होते हैं, घने जंगल होते हैं कि जो कैनोपी ऑफ ट्रीज होती है ना डज नॉट अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। सनलाइट धरती पे फॉरेस्ट में नहीं पड़ती आके। दीज आर वेरी डेंस फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट है ये, डेंस फॉरेस्ट है ये, घने जंगल है ये। सनलाइट धरती पे नहीं पड़ती यहाँ पे। अभी तक आई थिंक इतना क्लियर व्हाट इज बेसिन, क्योंकि कुछ लेसन है बेसिन्स के बारे में। तो बेसिन का मतलब ही नहीं पता होएगा तो कैसे करोगे? एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आपको पूछा जाना है पेपर में व्हाट डू यू मीन बाय बेसिन, तो आपको गिव एग्जांपल ऑफ एनी टू बेसिन्स, या व्हाट इज बेसिन, राइट नोट ऑन अमेजोन बेसिन, या व्हाट इज बेसिन, राइट नोट ऑन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो ये अपने आप बन जाने क्वेश्चन। या डिफाइन बेसिन, राइट द क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, राइट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन। कुछ भी आ सकता है पेपर में, आपको तभी सारी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन, आई थिंक नो लोकेशन इज क्लियर। कौन से रीजन में है, कौन सी लैटिट्यूडनल एरिया में है? इक्वेटोरियल, ठीक है।
फिर कौन सा 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। अब इक्वेटरल रीजन है तो क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, दैट्स रेनफॉल डेली। ड्यूरिंग डे में जो टेम्परेचर है दैट इज हाई एंड विद हाई ह्यूमिडिटी। ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। अब क्योंकि यहाँ पे डेली बारिश होती है तो वेजिटेशन कैसी होगी, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मीन्स आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट एक ही बात पढ़ी है जहाँ पे डेली बारिश होती है। तो इट मीन्स दिस रीजन हैज वेरी डेंस फॉरेस्ट, सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड। तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं और जो सनलाइट है कैन नॉट रीच द ग्राउंड। तो यहाँ पे बर्ड्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, टर्कन्स, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिनके बहुत सुंदर आप कहोगे कलरफुल फेदर्स होते हैं, वो बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड फिर हम कहेंगे यहाँ पे एनिमल्स सच एज मंकी, एंट ईटिंग, टैपियर, स्लोथ, ये सब पाए जाते हैं। फिर हम कहेंगे यहाँ पे रेप्टाइल्स भी हैं, एनाकोंडा पाया जाता है, पाइथन्स, ये सब क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, ये सब एनाकोंडा यहाँ पे सब पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत से वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। पिराना फिश इज आल्सो फाउंड इन दिस बेसिन। इस रिवर में, अमेज़न रिवर में पिराना फिश पाई जाती है, पिराना फिश। तो पिराना फिश की क्या स्पेशलिटी है कि दैट इज फ्लैश ईटिंग फिश, फ्लैश खाती है वो, ठीक है। तो पिराना फिश इज फाउंड इन द रिवर अमेज़न। तो इट मीन्स दिस एरिया इज रिच इन, यहाँ पे हम कहेंगे रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। अब यहाँ के लोग कैसे हैं, अमेज़न बेसिन के मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे लोगों का, क्योंकि रेन फॉरेस्ट एरिया तो मेन ऑक्यूपेशन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न यू नो इट वेरी वेल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वुमेन क्रॉप्स ग्रो करती हैं, जो मेन है वो हंटिंग एंड आप कह सकते हो फिशिंग में इन्वॉल्व है। वुमेन जो है वो क्रॉप्स ग्रो करती है, विच इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ अमेज़न बेसिन, कसावा, जस्ट लाइक पोटैटो की तरह होता है। दैट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ अमेज़न बेसिन। वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, which is the staple food of the people of Amazon basin, to cassava। तो यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी ग्रो होती है, कैश क्रॉप्स जो कि बेचने के लिए, कॉफी, कोकोआ, मेज, these are the cash crops grown in Amazon basin। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम कहेंगे वेजिटेशन जो है दैट इज रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वुमेन क्रॉप्स ग्रो करती है, मेन फिशिंग एंड हंटिंग में इन्वॉल्व है। फिर हम कहेंगे यहाँ पे कसावा इज द मेन फूड, लोग कसावा ग्रो करते हैं जस्ट लाइक पोटैटो। एंड नेक्स्ट कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं जो कि वो मार्केट में बेचते हैं। वो कौन सी क्रॉप्स हैं, कोकोआ, कॉफी, मेज, दीज आर द कैश क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेज़न बेसिन। अब यहाँ पे जो घर है, बिकॉज डेली बारिश होती है तो यहाँ पे जो घर है उनकी स्टीपी स्लांटिंग रूफ है, जिन्हें कहा जाता है मलोका, स्टीपी स्लांटिंग रूफ, क्योंकि घरों की छत पे पानी ना खड़ा हो जाए तो इसलिए स्टीपी स्लांटिंग रूफ्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है मलोका। अब इस बेसिन में अर्लियर इन लोगों की जो लाइफ थी ना वो इतनी, हम कहेंगे कि ट्राइबल टाइप थे ये लोग, बट अब बहुत से चेंजेस आ गए हैं इनके लाइफस्टाइल में। अब यहाँ पे ट्रांस अमेज़न हाईवे बन चुकी है और एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं इस एरिया में। लोग अब रूरल एरियाज को छोड़ के सिटीज की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो बहुत हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है इस एरिया की, बट डेवलपमेंट तभी होएगी आफ्टर डिप्लेटिंग फॉरेस्ट। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, बिकॉज अगर रोड्स बनानी है, रेलवेज नेटवर्क, रेलवेज कुछ भी उन्होंने कुछ भी बिल्डिंग्स बनानी है ना, लैंड अंडर कल्टीवेशन लानी है, तो आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट ये सब कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नो डाउट
have taken place in the Amazon basin, but this led to the depletion of forest. अब कहीं ना कहीं forest वहाँ पे deplete होते जा रहे हैं, and top soil is washed away as, क्योंकि rainfall तो daily होती है, तो top soil is washed away as the rains fall and the forest turns into a barren landscape. टॉप सॉइल वास्ट वे हो रही है क्योंकि बारिश तो रोज आ रही है, तो जो फर्टाइल लैंड थी ना कहीं बैरन लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। ड्यू टू क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, बैड इम्पैक्ट है ऑन द अमेज़न बेसिन। गुड इम्पैक्ट तो यह है कि लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहे हैं, उनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो चुके हैं। तो ट्रांस अमेज़न हाईवे बन चुकी है, हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट्स यूज हो रहे हैं टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, बट इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का बैड इम्पैक्ट भी इस फॉरेस्ट पे पड़ रहा है। अमेज़न बेसिन जो है ना, रेन फॉरेस्ट जो एरियाज है ना, वो अब डिप्लीट होते जा रहे हैं ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो बारिश तो वहाँ पे डेली आनी है, दिस रीजन गेट्स हैवी हाई रेनफॉल डेली, यहाँ पे डेली होती है। तो जो टॉप सॉइल है ना, दिस हम कहेंगे रेनफॉल लेट द टॉप सॉइल वाश्ड अवे। तो कहीं ना कहीं जो ये फर्टाइल लैंड थी, अब ये कहीं ना कहीं बैरन लैंडस्केप में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ये बैड इम्पैक्ट भी है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का कि फॉरेस्ट एरियाज आर नाउ गोइंग टू डिप्लीट इन अमेज़न बेसिन। नो, इज इट क्लियर? अमेज़न बेसिन में आपको कोई प्रॉब्लम? लोकेशन, फिर मैंने बताया क्लाइमेट, फिर वहाँ की वेजिटेशन। वेजिटेशन में आपने रेन फॉरेस्ट बोले, कसावा वहाँ का स्टेपल फूड बोला, डिफरेंट क्रॉप्स बोली आपने यहाँ पे ग्रो होती हैं, और कैश क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं, सच एज आपने कोकोआ, कॉफ़ी, मेज, ये कैश क्रॉप्स हैं। फिर आपने कहा कि यहाँ पे नेक्स्ट हम कहेंगे रिच इन फौना, बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, पाइथॉन्स, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल सब पाए जाते हैं यहाँ पे। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, मंकी, स्लोथ्स, ये सब यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। दीज आर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये सारा हमने इनकी वेजिटेशन एंड इनके वाइल्ड लाइफ में पढ़ा। नेक्स्ट, यहाँ के लोग कैसे, जो यहाँ पे मेल है वो हंटिंग एंड फिशिंग में इन्वॉल्व थे। इनका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वुमेन जो है वो बच्चों की भी केयर करती हैं एंड टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स आल्सो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रेन फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। तो इधर हम कहेंगे कि आप कह सकते हो कसावा इज द मेन फूड, यहाँ का स्टेपल फूड है। तो ये लोग कहीं ना कहीं कसावा भी ग्रो करते हैं और साथ में कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। तो अब विद द चेंज ऑफ टाइम इनकी लाइफस्टाइल भी चेंज होती जा रही है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण। ये एरिया कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया जा रहा है। वहाँ पे ट्रांस अमेज़न हाईवे बन चुकी है, तो हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स यूज हो रहे हैं। तो नो डाउट various developmental activities took place in this basin, but this led to the depletion of forest. कहीं ना कहीं ये फर्टाइल जो लैंड है ना यहाँ की, now it has converted to barren land. अब ये barren land बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। So this is about Amazon basin. I think no, it's clear. Now come to गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये तो अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना। तो हमारी कंट्री में जो आपको पता है सबसे ज्यादा हम कहें अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, अगर मैं वर्ल्ड की भी बात करूं तो दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये वाला एरिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो कुछ तो बात होएगी ना, डेंसली पॉपुलेटेड है मींस क्लाइमेट सुटेबल होएगा, ठीक है।
वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होंगी, लैंड फर्टाइल होएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, सारी फैसिलिटीज लोगों को यहाँ पे मिलती होंगी, तभी डेंसली पॉपुलेटेड है ना, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। हम खुद ही तो कहते हैं कि गंगा बेसिन में, वाराणसी में हम खुद ही कहते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो इट मीन्स ये वाला एरिया पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। नो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है, पहले तो कॉन्टिनेंट, जैसे उधर साउथ अमेरिका, ये एशिया, कॉन्टिनेंट तो एशिया रहेगा बिकॉज इंडिया इज इन एशिया, इंडिया एशिया में है, यू नो इट वेरी वेल। अब एशिया में कौन सी कंट्री में है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन? इंडिया में, इंडिया में है, और इंडिया के कौन से पार्ट में है? नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। Towards the northeastern part of India, there is Ganga Brahmaputra basin. This area is drained by two rivers and their tributaries. Which are the two rivers? River Ganga that enters the northern plains at Haridwar. हरिद्वार से रिवर गंगा एंटर होती है। तो हम तो इधर रह गए, हमारा तो सतलुज बेसिन है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा बेसिन। तो रिवर गंगा with its tributaries drain this region. Main tributary of Ganga, you know it very well, Yamuna. Yamuna is the main tributary of river Ganga. बाकी घाघरा, कोसी, सोन, चंबल, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, ये देखो इधर से ईस्टर्न साइड से, एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा बोथ बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, दोनों ही बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, ये बे ऑफ बंगाल है, दोनों रिवर बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड near the mouth of the river. What is delta? Triangular piece of land near the mouth of the river. So both these two rivers, Ganga and Brahmaputra, before falling into which say Bay of Bengal, before falling into Bay of Bengal, formed the largest delta in the world. And you know which delta is this? Sundarbans. कौन सा delta है? Sundarbans. This is the largest delta in the world. Sundarban delta ये बनाती हैं, that is the largest delta in the world. इसका नाम क्यों पड़ा सुंदरबन? Because सुंदरी trees are found here. यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सुंदरी trees. सुंदरी trees are found here. So listen again. Ganga Brahmaputra basin. First of all, the continent Asia, country India. इंडिया के किस पार्ट में? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज ड्रेन्ड बाय टू रिवर्स, मेन टू रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरीज। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा विद देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म दिस बेसिन। तो दोनों रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल formed the largest delta in the world, and that is Sundarbans delta. Which delta? Sundarbans delta. तो अब यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि दिस रीजन, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन वाला जो एरिया है, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन बनाती हैं? रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड यू नो इट वेरी वेल, बोथ आर हिमालयन रिवर्स। ये दोनों ही कौन सी रिवर्स हैं? हिमालयन रिवर्स। स्टार्ट फ्रॉम हिमालयास। कहाँ से आती हैं? हिमालयास। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर में से आती है। कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर। तो दोनों ही हिमालयन रिवर्स हैं एंड पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल रिवर्स मीन्स
इनमें कभी भी वाटर की कमी नहीं होती, इनमें हर टाइम पानी रहता है, कभी भी ये रिवर्स ड्राई नहीं होती, बिकॉज ग्लेशियर्स जो है, जैसे मैंने बोला गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है गंगा, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग भी, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं। तो ग्लेशियर्स का जो वाटर है ना वो इन रिवर्स में आता है। तो जो स्नो फेड, ये जो हमारी दोनों रिवर्स है ना, ये स्नो फेड रिवर्स हैं। स्नो फेड मीन्स वाटर कहाँ से आता है? ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, हिमालयाज में से स्टार्ट होती हैं। अगर हम इन्हीं रिवर्स को छोड़ के साउथ इंडिया की रिवर्स की बात करें, जैसे मैं बात करूं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, अगर इन रिवर्स की बात करूं तो दीज आर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा। अगर मैं साउथ इंडियन रिवर्स की बात करूं तो वो हैं रेन फेड रिवर्स, दीज आर स्नो फेड रिवर्स। गंगा ब्रह्मपुत्रा स्नो फेड रिवर्स हैं। अगर हम साउथ इंडियन रिवर्स की बात करते हैं तो दे आर रेन फेड रिवर्स, उन्हें जो वाटर है वो रेनफॉल से मिलता है। अगर रेनफॉल कम होती है तो रिवर्स ड्राई हो जाती है, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए तो फ्लड्स आते हैं। मोस्टली आपने नोट किया होगा साउथ इंडिया में ओडिशा वाली साइड बहुत फ्लड्स आते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं बारिश ज़्यादा होने के कारण वो रिवर्स भर जाती हैं, तो वहाँ पे फिर उन एरियाज में फ्लड्स आते हैं। तो ये जो दोनों रिवर्स हैं दीज आर स्नो फेड रिवर्स, हिमालयन रिवर्स हैं ये दोनों ही, ठीक है। तो अब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ना, आप कह सकते हो कि यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, हमारे वाला ही जो हमारे यहाँ पे है। तो आप कहोगे कि गर्मियों में, बहुत गर्मियों में जैसे हमारे ही है एक्सट्रीम, गर्मियों में गर्मी ड्यूरिंग डे एंड नाइट, एंड इन विंटर्स डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड, इन समर्स डेज एंड नाइट्स आर हॉट, एंड इन विंटर्स डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो इट मीन्स मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉनसून सीजन में बारिश होती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम जून टू सितंबर, जून टू सितंबर मंथ में बारिश होती है। एंड हियर क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स हॉट। इन समर्स आप कहोगे डेज आर हॉट, नाइट्स आर इक्वली हॉट, इन विंटर डेज आर कोल्ड एंड नाइट्स आर इक्वली कोल्ड। जैसे आपने उधर पढ़ा था सहारा डेजर्ट, डेज आर हॉट बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कहोगे एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्योंकि हमने अपना खुद का क्लाइमेट लिखना है। हमारे यहाँ पे अभी देखो विंटर सीजन इज गोइंग ऑन, तो डेज आर कोल्ड एंड नाइट्स आर इक्वली कोल्ड। ऐसे तो नहीं है हमारे समर्स में कि डेज में गर्मी होती है और रात को ठंड हो जाती है, नो। हमारे समर सीजन में भी अगर दिन में हम एसी चला के बैठते हैं तो रात को भी हमें चलाना ही पड़ता है। मीन्स डेज आर हॉट, नाइट्स आर इक्वली हॉट, whereas in winter days are cold, nights are cold। तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। नो इज इट क्लियर? बट हम साथ में ये बताएंगे कि बारिश जो है, रेनफॉल जो है, दैट इज इन मॉनसून पीरियड, मॉनसून सीजन में यहाँ पे बारिश होती है, बिकॉज इट हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे मॉनसून सीजन में बारिश होती है, जून टू सितंबर मंथ में यहाँ पे रेनफॉल आती है। हम कहते हैं मॉनसून विंड आ गई है, जुलाई में कितनी तेज तेज बारिश होती है, कई बार अगस्त में होती है, तो वो मॉनसून सीजन है। तो यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट है। नो इज इट क्लियर? यहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का हमने पढ़ा हॉट एंड वेट, क्योंकि वो तो है इक्वेटोरियल रीजन में, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहना है कि जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। समर्स में अगर दिन में गर्मी है तो रात को भी गर्मी है, विंटर्स में अगर दिन में ठंड है तो रात को भी ठंड है। तो दिस इज अबाउट क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब यहाँ पे टोपोग्राफी जो है दैट इज नॉट सेम, यहाँ पे टोपोग्राफी जो है दैट इज नॉट सेम, ठीक है।
यहाँ पे कुछ एरियाज में माउंटेन्स हैं, कुछ एरियाज में प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे टोपोग्राफी इज नॉट सेम। ठीक, तो उत्तराखंड वाली अगर बात करें, उत्तराखंड वाली साइड, तो वहाँ पे उत्तरांचल वगैरह वाली साइड, उत्तराखंड तो हम बात करें तो वहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स हैं। तो टोपोग्राफी मीन्स लैंड सरफेस रिलीफ। Topography of these basin, Ganga Brahmaputra basin, is not same. In some parts there are mountains, whereas in other parts there are plains. अगर हम इस एरिया की बात करें तो माउंटेनियस रीजन्स जो हैं they are not densely populated, they are sparsely populated. वहाँ पे population कम है, whereas अगर हम प्लेन्स की बात करें तो they are densely populated.